और कौन बचा है, किसी का इंट्रोडक्शन रहता हो तो लेट्स कंप्लीट इट। चलिए, कुसुम मेहदी रत्ता जी भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। एंड अभी और कौन है जिनका इंट्रोडक्शन हमारे क्लास में नहीं हुआ, वो यहाँ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अपनी 2 लाइन जल्दी से बोल दें सो दैट वी कैन गो अहेड। आज बहुत कुछ हमें आपसे सीखना है, आज कुछ सिखाना नहीं, सीखना है आज। A lot of things are there which are going to be shared from your side. बहुत सारी लर्निंग्स आज हैं। कृष्णा झा जी, आई वुड लाइक टू हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, जल्दी से, बस दो लाइन में आप मुझे इंट्रोड्यूस करें सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम फुली। Hello sir, my name is Krishna Jha. I used to teach earlier. Now I'm thinking of teaching online. वाह, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज की इस क्लास का फॉर्मेट बता दूं। वी आर गोइंग टू live together for 16 classes in next 40 days, and in these 40 days a lot of sharing, a lot of interaction is going to happen, and we would be learning a lot together. So whatever knowledge we both have, means from Margdarshan Guru and people trainers, myself and Satya both would be there to facilitate you for the online teaching. So, and apart from that, whatever knowledge you are coming with, and that would be also shared as I expect this, and this bundle would be a wonderful bundle for ourselves. It would be a bundle of learning which can be beneficial for every one of us. चलिए, तो मैं आगे लेके चलता हूं दोस्तों। जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी कार्यवाही। और अगले दिन में what we are going to cover in this particular course, so I'm just giving you the highlight of this. It would be a 5 to 6 weeks duration course, and wherein 16 classes would happen, and 16 lessons would be there, and 16 assignments would be there. हर एक लेसन के बाद, हर एक क्लास के बाद you'll get one assignment, and you have to complete that assignment to get entry in the next class. और हम फिर से वही स्कूल में पहुंचने वाले हैं। तो ये लर्निंग बड़ी स्पेशल सी होगी। जो हम प्राइमरी स्कूल में अभी तक हमने सीखा, the same way we are going to learn here. और इस पूरे 40 days में we are going to create one legacy for ourselves. Whatever we are going to leave behind means a course, a creation of course, whatever we want to teach, whatever we want to share with others, that would be created and developed in the form of a course. So that is going to be created in next 40 days, and every one of us would be able to do it. And in this course there would be 4 modules only. 4 मॉड्यूल होंगे। पहला होगा जहां हम असेसमेंट कर रहे होंगे। A lot of part of this first module we are going to cover today. आज ही हम इसका बहुत सारा पार्ट कवर कर लेंगे। एंड सेकंड में होगा डेवलपमेंट। हम असेस बाद अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, wherein we would be creating an online course, ऑनलाइन वीडियो कोर्स हम अपना क्रिएट कर रहे होंगे। ये पूरा डेवलपमेंट फेज होगा जहां आपके सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरी से whatever you have in your mind, that is going to come outside in the form of creativity and data and information. And third one, the creations by you, the development by you would be reviewed by your peers, reviewed by your friends, reviewed by the people to whom you want, you should forward it to them, and then feedback will come, and you would be incorporating that feedback and you would test it. And in 4th module, your course would be implemented, put on the platforms for selling, and you would be learn marketing. You would be doing marketing for your course. आप जो कोर्स बनाएंगे उसको खुद ही मार्केट करना है, खुद ही सेल करना है, बनाना है, टेस्ट करना है, एसेस करना है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय यू। आपको ही सब कुछ करना है और हम यहाँ आपको कराने बैठे होंगे। वी वुड बी फैसिलिटेटिंग यू इन दिस फर्स्ट मॉड्यूल। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, हम क्या कवर करने वाले हैं? मेन 3 चीजें। व्हाट इज आवर नीच एंड गोल सेटिंग? द नीच एंड गोल सेटिंग वो आज कंप्लीट कर लेंगे। क्लाइंटेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट, एंड कंपटीशन का आइडेंटिफिकेशन वो सब हम कल कर लेंगे।
ये 2 क्लासेस हमारी थियोरी कम प्रैक्टिकल होंगी, आगे की क्लासेस हमारी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगी। तीसरे में हम अपना ऑनलाइन कोर्स प्लान और डिज़ाइन प्लानिंग शुरू कर देंगे, यानी पूरे तीसरी क्लास में हम अपने कोर्स को प्लान कर देंगे। और नेक्स्ट चौथी क्लास से हमारा मॉड्यूल जिसमें 8 लेसन होंगे, उसमें हमारा पूरा डेवलपमेंट होगा। हम सीखेंगे वो सारी चीज़ें जिनसे कोर्स क्रिएट होता है, कैसे ऑनलाइन टीचिंग के लिए हम जाएंगे, वो सब हमारे नेक्स्ट 8 लेसन्स में होगा। देन आफ्टर दैट मॉड्यूल 3 में हम जाएंगे, और मॉड्यूल 3 में 3 क्लासेस होंगी और उनमें हम सिर्फ रिव्यू और टेस्टिंग करेंगे। ये फेज बहुत हार्ड फेज होता है, हमारा बहुत हार्ड फेज होता है, बट हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस फेज से आगे निकल आएंगे। इससे पहले वाले बैचेस को भी थोड़ी मुश्किल आई थी, बट दे कुड मैनेज इट टू कम आउट। एंड द 4th मॉड्यूल होता है, उसमें 4 to 5 लेसन्स हैं, और इन लेसन्स में हम वो कमर्शियल पार्ट सीखेंगे कि कैसे हम इसको सेल कर सकें, कैसे मार्केट कर सकें, कैसे प्लेटफॉर्म्स पर रखना है, कैसे इसको पॉपुलराइज करना है, कैसे सेल करना है। इट वुड बी अ मोर कमर्शियल पार्ट, एंड इन 3rd मॉड्यूल इट वुड बी अ मोर टेक्निकल पार्ट। ये 4 मॉड्यूल्स में हम इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड कोर्स की डिलीवरी, द majority of the lessons would be delivered on Zoom online with mutual interaction here. And after each lesson, the sessions would be recorded, because as the first lesson is also on record. So as soon as you complete this lesson, we would post it in your WhatsApp group. हम आपके WhatsApp group में से पोस्ट कर देंगे कल सुबह 10 बजे से पहले। And PowerPoint PPT we generally do not share with you. आपको recorded lesson in the form of video आएगा। Telephonic and remote support would be available to you between 10 to 12 AM, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में हम आपको टेलीफोनिक सपोर्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। दोनों लोगों को आप फोन कर सकते हो, हम खुश होंगे आपकी क्वेरीज को लेके, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करके। इन केस आप प्रेजेंट नहीं है तो भी आप अपना वीडियो लेसन देखकर और उसके बाद असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हो। दैट सपोर्ट विल रिमेन विद यू। तो ये हमारा कोर्स का आउटलाइन है, एंड द कोर्स विल बी डिलीवर्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. The person who is not able to take it in any one language, they can ask it for the English or Hindi, whatever is the alternate language for them. जो भी उनको अच्छा लगता है दोनों में से आप रोक के हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उस लैंग्वेज में ये सिखा देंगे, ये आपको रिपीट कर देंगे. तो दोस्तों ये हमारा एक मॉड्यूल है इस कोर्स का. आज के पहले लेसन को हम शुरू करने वाले हैं. सत्या मेरे साथ अगर जुड़ गए हों तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू. चलिए, ही इज नॉट देयर. मधुसूदन रेड्डी जी, आप लगातार फोन पर हैं और मेरी गुजारिश है कि अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लेसन है आज, और आज हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए. दोस्तों हो जाओ तैयार, कमर कस के चलते हैं एक और सफर पे जहां आप सीखेंगे 40 दिन में ऑनलाइन टीचिंग के नुस्खे, और उन नुस्खों में से आज पहला लेसन हम कंप्लीट करने वाले हैं. और उस पहले लेसन में आज हम 4 एक्सरसाइज करने वाले हैं. देयर आर 4 एक्सरसाइजेस टू बी डन बाय यू. आज आप बहुत कुछ यानी करने वाले हो, बहुत कुछ अंदर से बाहर निकालने वाले हो. ऐसा आपने कई बार पहले भी किया होगा, पर आज ये कुछ अलग ही होगा. तो चलिए तैयार हो जाएं. कॉपी पेन अपने पास ले लीजिए, पानी की बोतल रख सकते हो. 1 घंटे तक हम दम साध के बैठेंगे और बहुत सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं. कम ऑन, चलिए. आज का पहला लेसन है योर नीड्स एंड गोल डिटर्मिनेशन. हर एक लर्निंग से पहले एक रीजन होना चाहिए हमारे पास. Why we are going to learn this and how would we going to learn it, and after learning what is the benefit of it, how we are going to change our life with this, and how we are going to contribute in the development of this planet and the society.
पहले आउटलाइन को कॉन्फ़िगर कर लें, पहले आउटलाइन को आइडेंटिफाई कर लें, पहले आउटलाइन को ड्रॉ कर लें, तो बहुत इजी होता है कि एक नई लर्निंग को एक नई डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। स्क्रीन इज हैंग्ड, जस्ट ए मिनट। अगर किसी को यस 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 आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। सत्या, मेरी वॉइस तो आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मुझे कोई बताएगा प्लीज माइक ऑन करके, माय वॉइस इज देयर, और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। हाँ सुनाई देता है। हाँ वॉइस आ रही है। ग्रेट, यस सर, वॉइस आ रही है। यस सर वॉइस आ रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, लेट्स गो अहेड। In today's topic, we are going to cover three things mainly. One is self-analysis. आज खुद को कुरेद के देखना है कि हम क्या हैं और कैसे ऑनलाइन टीचिंग से कनेक्ट हो रहे हैं और क्या हम करने वाले हैं, खुद को कुरेदना है। Second, niche determination. What I have the best thing which I'm going to share with others. And third thing, up to what extent I'm going to have benefit of it, how this is going to change my life, my profession, my career or my ambitions, वो सब कैसे बदलेंगे इससे, उनमें क्या इफेक्ट आएगा, वो आज हम इससे सीखने वाले हैं। तो चलिए, तीन चीजें हम बढ़ेंगे आगे। First exercise, let's do self-analysis. So I'm going to ask you 10 questions today. आज मैं आपसे 10 सवाल पूछ रहा हूं, आप ये 10 सवाल खुद से पूछेंगे। जब आप 10 सवाल खुद से पूछेंगे, उनका बहुत जेन्युइनली आपको आंसर देना है, बहुत जेन्युइनली। आप अपना कॉपी पेन ले सकते हैं, प्लीज पिक योर कॉपी एंड पेन विद यू एंड बी रेडी फॉर एन एक्सरसाइज। यही एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। देयर आर 10 क्वेश्चंस and these all 10 questions are based upon psychology, or you can say this is psychometric assessment for you. And उस psychometric assessment में आपको वो 10 चीजों के जवाब देने हैं, आपको खुद को रेट करना है, और मैं उस रेटिंग का जब रिजल्ट आपके पास आएगा तब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बहुत जेन्युइनली रेटिंग करना है, कोई ओवर रेटिंग की सोचनी भी नहीं है, बिकॉज आप अपना असेसमेंट कर रहे हो। कोई ज्यादा नंबर लाने की ये एक्सरसाइज नहीं है, ये ज्यादा नंबर लाने की एक्सरसाइज नहीं है। और इन केस यू वांट, यू कैन शेयर द रिजल्ट इन माय प्राइवेट विंडो, या आप मुझे चैट में पर्सनली भेज सकते हो, आप पब्लिक नहीं करना चाहते तो। और अगर पब्लिक करना चाहते हो तो करें, हम सब एक जैसे ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आप प्लीज ये 10 सवालों के जवाब बहुत ही तसल्ली से दीजिएगा और बहुत ही ईमानदारी से जवाब देने आपको। ये जवाब आपके डिसाइड करेंगे कि मैं ऑनलाइन टीचिंग में कितना सक्सेस होने वाला हूं। यस, कम ऑन। So these are 10 questions on your screen. Self-analysis, 10 questions, one exercise. Rate yourself at the scale of 1 to 5, where 1 is bad, 2 is poor, 3 is average, 4 is good, and 5 is excellent. First thing, the पहला क्वेश्चन मैं समझाता चलूंगा, आपको सिर्फ उसका आंसर लिखना है, आपको उसकी रेटिंग लिखनी है, अपने आप को रेट करना है। सेल्फ एक्सप्रेशन, हाउ गुड यू थिंक यू आर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिफोर अदर्स। दूसरों के सामने आप खुद को कितनी अच्छी तरह से रख पाते हो, आप अपनी बात, अपने मन की बात लोगों तक कैसे पहुंचा पाते हो, जो आपके अंदर इंट्यूशन आता है वो आप लोगों के साथ कितनी आसानी से कह सकते हो। हाउ कंफर्टेबल यू आर टू mix with others or to explain your thing with others, whatever is in your mind, how comfortably you share it with others। कितनी आसानी से आप लोगों को ये बात कह देते हो। हेजिटेशन होती है, नहीं होती है, कितनी हेजिटेशन होती है। आपको अपफ्रंट बोलना पड़े तो कितना बोल सकते हो, यानी आप कितनी अच्छी तरह अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो दूसरों को। यू हैव टू रेट इट एट द स्केल ऑफ 1 to 5। प्लीज आप अपने को स्केल कर लेंगे। और जल्दी से स्केल करें, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्रिएटिव थिंकिंग, हाउ ऑफन यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, हाउ ऑफन यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। यस, संजय नेगी जी ने आंसर दे दिया, मैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ग्रेट, मेरे पास संजय नेगी जी का आंसर आ गया है। आप इसको लिखते चलना और फिर बाद में टोटल भी करना है। एक आंसर मेरे पास आ गया है, आप अपने पास भी रख सकते हो ये आंसर्स, मुझे आप स्कोर बता देना लास्ट में, इंडिविजुअल स्कोर टाइप कर देना कि किस में कितना आया। एंड क्रिएटिव थिंकिंग, हाउ क्रिएटिव यू आर, कितना नया सोचते हो, कितना नए तरीके से सोचते हो, कितना हटके सोचते हो, जो चल रहा है उससे बाहर सोचते हो, बॉक्स से बाहर जाके सोचते हो, नया कितना, जिंदगी में कितना नया करते हो, परिवार में कितना नया करते हो, प्रोफेशन में कितना नया करते हो। आपको अगर 5 में से नंबर देना पड़े नया सोचने के लिए, कितना करते हो, प्लीज रेट करें। आई थिंक कर चुके होंगे। बहुत सरल सवाल है, नहीं समझ में आए तो मैं बता सकता हूं आपको, फिर रिपीट कर सकता हूं। वाह, संजय नेगी जी का फिर आंसर आ गया। एंड थर्ड इज पब्लिक स्पीकिंग, लोगों में बोलना। शायद इस सेल्फ एक्सप्रेशन का ही दूसरा रूप है, बट सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब था कि आपके अंदर जो आ रहा है वो बोलना, और पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि जो आपने सीखा हुआ है उसको बोलना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो आप कितना आसानी से पब्लिक में बोल सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग आपकी कैसी है, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये रेट करना है आपको। अभी पब्लिक स्किल कितनी कर रहे हो, सेल्फ एक्सप्रेशन थी कि आप उसमें कैसे हो, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या आप अभी टीचर हो, ट्यूटर हो, ट्रेनर हो, आप जिस प्रोफेशन में, कितना आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और कितना कंफर्टेबल आप उसमें फील करते हो। आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करके, बोलना, जब चाहे लोगों को आपको कन्विंस करना, आपको अच्छा लगता है पब्लिक स्पीकिंग में? प्लीज रेट करिएगा, जहां नहीं फर्क समझ में आए मुझे पूछ लें। चौथा भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है, हाउ कंफर्टेबल यू आर इन एक्सप्लेनिंग अदर्स टू मेक देम लर्न। टीचिंग और कन्विंसिंग और पब्लिक स्पीकिंग में दोनों फर्क है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब यू आर स्पीकिंग, इट इज वन वे, इट इज वन वे, and the teaching and convincing, it is the other part also, means you are making them learn। आप जिस पर्पज के लिए लोग आपको सुन रहे हैं वो पर्पज फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू आर एबल टू मेक देम लर्न, यू आर एबल टू मेक द कनेक्शन विद अदर्स एंड मेक देम लर्न, एंड यू आर एबल टू ग्रैब देयर सबकॉन्शियस माइंड। आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को ग्रैब करने में कितना, यस, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। संजय जी का फिर आया। एंड the last one or fifth one, yes, great, वो भी आ गया उनका। and fifth one is sharing with others, कितने इजीली आप लोगों के साथ शेयर करते हो, आपका हेल्पिंग एटीट्यूड कैसा है, आप लोगों को कितना हेल्प करना चाहते हो, कितना देना चाहते हो, आपकी गिविंग नेचर कितनी है, क्या आपकी टेकिंग नेचर है, एवरेज है, गिविंग है, आप कितने अच्छे हो, हाथ कितना खुला हुआ है कुछ भी देने में, जरूरी नहीं पैसा, बांटने में, बांटने में। यस, तो मैं समझता हूं 5 हो गए। छठा, हाउ मच कंप्यूटर सेवी यू आर, हाउ मच कंप्यूटर सेवी यू आर, हाउ मच कंप्यूटर सेवी, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स। संजय नेगी जी झंडे गाड़ रहे हो आप तो। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ गुड यू आर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट बनाने में आप कितने अच्छे हो, या पावर पॉइंट कितनी बना रहे हो आप, यूज की है, नहीं की है, बिल्कुल नहीं की तो आप 1 लिख सकते हो, कभी कभी की है 2 लिख सकते हो, कभी आप कर पा रहे हो आसानी से तो आप 3 लिख सकते हो, और बहुत बढ़िया बना लेते हो 4 लिख सकते हो, बहुत ही क्लासिक बनाते हो 5 लिख सकते हो। नेक्स्ट, क्या आप 1 घंटा स्पेयर कर सकते हैं रोज अपनी इस स्किल के लिए? बहुत ईमानदारी से प्लीज 1 घंटा स्पेयर कर सकते हैं, पूरा 1 घंटा दे सकते हो एक दिन के, तो मेरे पास रिजल्ट भी आ गए हैं। फेसिंग कैमरा, कैमरा फेसिंग में कैसे हो आप, और असाइनमेंट्स के लिए कमिटमेंट आप कितना करते हो? यस, बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो 22C33535 था मिस्टर मूर्ति, आप इसको प्लीज रीनेम कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ सबको पता चलता रहेगा। तो ये इस कोर्स में नोट कर लेता हूं आपके।
लोकमान सर, अभी सबके टोटल का स्कोर आपको भेज दे तो चलेगा सर? मुझे अगर इंडिविजुअल भी भेज दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रादर मेरे रिकॉर्ड में जाना है। टोटल आप भेज दोगे, इंडिविजुअल भेज दोगे तो बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्ड में मैं वो लास्ट में एक बार आपको, जब हम क्लास कंप्लीट कर रहे होंगे, कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, तब काम आएगा ये। Okay, can I see the score one by one? Pardon? Can I give my score? Yes, please. स्कोर मुझे आप इंडिविजुअल या पब्लिकली, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है पब्लिक कर सकते हो, अदरवाइज मुझे भेज सकते हो आप। क्योंकि मैंने फोन को ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है, तो वैसे भी मैं आई कैन नॉट टाइप ऑन इट, आई एम राइटिंग ऑन द बुक, आई कैन स्पीक ओनली। तो आप मुझे भेज देना, फिर आप मुझे ग्रुप में इंडिविजुअल भेज देना, मुझे नोट करना है वो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आई डोंट माइंड स्पीकिंग इन पब्लिक। ओह ग्रेट, आप नाम बता दें सर मुझे पहले तो। रफीक पिरानी। वाह ग्रेट, यस रफीक जी। या फर्स्ट क्वेश्चन का स्कोर है 9। मुझे आप टोटल बोल दो और बाकी मुझे बाद में भेज दो। टोटल 74 है। वाह वंडरफुल, 74। पर ये तो सर हमारा स्कोर ही 50 से ऊपर नहीं जाना था। 1:5 का रेशियो था, 50 टोटल होना था। अच्छा 1:5 है, मैंने 1:10 लिया। नहीं 1:10 लिया है, तो एक बार डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये कितना हुआ? 37। ग्रेट, रफीक जी का 37 हो गया। रजनीश गुलाटी जी अभी टाइप कर रहे हैं। मधुसूदन जी, लेकिन मेरा पावर पॉइंट में 0 है, पावर पॉइंट में। कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी जो हिम्मत है ना बताने की, वो बहुत बड़ी है। रियली कभी बनाया नहीं पावर पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, अब सीखोगे सर, ये बात यही रह जाएगी आपकी। कृष्णा झा 44, निर्मल शर्मा 30, डॉक्टर ऋषि ने 38 कर दिया, एंड संतोष कुमार, नोट कर रहा हूँ। यस इनेशियो जी, मैंने आपका नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इनेशियो जी का 47 एंड संतोष जी का 39 एंड कुलकर्णी जी आपने मिस कर दी एक एक्सरसाइज, बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज थी, आपको वो वीडियो लेसन देख के करनी पड़ेगी। इनेशियो जी का हो गया, ओके सर। निर्मल जी का हो गया, रजनीश गुलाटी जी का पूरा नहीं आ रहा, कृष्णा झा, जस्ट ए मिनट, कृष्णा झा 44, रजनीश गुलाटी जी आप उसको कंप्लीट कर दो एक बार, स्कोर और बता देंगे मुझे टोटल। कुसुम मैम वंडरफुल, बहुत बढ़िया कुसुम मैम। ऐसा कुछ है क्या सर कि इसमें जो है वो नंबर वाइज कैलकुलेट करके बताने का, ऐसा है क्या जो हमें आता है 1 2 3 4 में? आप मुझे डाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा कि मुझे आपकी किस स्किल पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, मुझे कहाँ आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, वो मुझे, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप कर देंगे, और मेरे लिए अच्छा रहेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो मुझे आपको बताना है कि कहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो नंबर बताने हैं मैंने आपको। तो पूरे नंबर बताओ, आप छुपा के नहीं रखना, खोलना है। ऑब्वियसली मतलब जो आते हैं, जो स्किल आता है वो नंबर बताने आपको, या जो नहीं आते वो नंबर बताने? 10 स्कोर देना है आपको, ये आपके लिए भी बहुत काम की चीज है। और चलिए मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, अभी मैं आपको इसका स्कोर बता देता हूं, यानी मैं आपके नंबर्स तो यहाँ पब्लिक नहीं कर रहा, आप जब तक नहीं कहेंगे पब्लिक नहीं करूंगा, बाकी लोग कर दें। पर इसमें से जिनका भी स्कोर 30 से कम है, 30 से कम है, उन लोगों को 1 घंटे मेहनत करने से काम चलने वाला नहीं है, बस मुझे ये बताना है। 30 से ऊपर 40 तक जिनका स्कोर है वो 1 घंटा रोज देंगे और असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करेंगे, तो ही ये कोर्स वो बना पाएंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज ये बतानी। पिछले 2 बैचेस का एक्सपीरियंस हमारे पास है, बहुत मेहनत हमने की, बट उसके बाद भी रिजल्ट उतना नहीं आया, तो फिर ये एक्सरसाइज हुई है। और आपको अगर 1 घंटा सिर्फ जिनका 40 से 50 है वो 1 घंटे में पकड़ सकते हैं, जो थोड़े टैक्स से भी हैं,
और जो 30 से 40 है उनको 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, चाहे नींद कम करो आपकी, पर आपको ये काम करना पड़ेगा। जो लोग 30 से नीचे है उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो उनको मेहनत ढंग से करनी पड़ेगी और या कोर्स छोड़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, 2 चॉइस में से आप चॉइस ले सकते हैं। 3 क्लासेस तक कंटिन्यू करो, खूब असाइनमेंट करो, करने के बाद आप फिर आपको लगे कि 1 हफ्ते तक मैं चला पाऊंगा कोर्स, बड़ी खुशी की बात है, हम बड़े खुश होंगे आपको आगे लेके चलने में। आपको लगे नहीं चला पाऊंगा, मैंने यहाँ गलती में आके, आप हमें बता देंगे, हम आपकी फीस वापस कर देंगे। 3 ऑप्शंस आपका, ये ऑप्शन आपके पास है, तो आप खूब चॉइस कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी स्किल ज्यादा काम आएगी वो मैं आपके साथ इंडिविजुअल डिस्कस कर लूंगा। मैं आपके जब इस कोर्स इंडिविजुअल देख के, क्योंकि यहाँ टाइम ज्यादा खर्च होगा, तो वो मैं आपको स्टडी करके और आपके साथ वो डिस्कस कर लूंगा। अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं दोस्तों, द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स गो एक्सरसाइज 2 एंड दैट इज नीज डिटर्मिनेशन। कई बार हम में से क्या होता है, चलो पैसे कमाने ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। ओ, कई बार हम जिस प्रोफेशन में गए ना, वो पैसे कमाने के लिए घुस गए, या पेरेंट्स के कहने से घुस गए, या किसी और फैसिनेशन में घुस गए, या जो काम कर रहे हैं वो हम किस ग्राउंड पे हैं, आज हम डिसाइड कर लें कि नीश डिटर्मिनेशन में क्या दुनिया को पढ़ाने वाले हैं, आज हम डिसाइड करें। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक नीश का मतलब होता है व्हाट बेस्ट यू हैव, क्या ऐसा अच्छा है आपके पास जिसे आप सबसे अच्छा कर सकते हो, वो आपकी नीश होगी, जिसे आप दुनिया को दे सकते हो, जिसे आप बेच सकते हो, जिसे लोग खरीदेंगे, जिसके लोग पैसे देंगे, आपको अच्छा लगेगा करते हुए। वो क्या है, वो नीश है। जैसे मैं अपनी बात करूं या एक एग्जांपल लूं, दूसरों को पढ़ाना, टीचिंग, ट्रेनिंग अदर्स, मेक देम लर्न, उनको स्किल ऐड करना, उनकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना, ये मुझे अच्छा लगता है, तो वो मेरी नीश है। मेरे सारे काम में से ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, तो वो मेरी नीश है। ऐसे ही आपकी नीश क्या है, व्हाट इज योर नीश, यू हैव टू डिसाइड। कैसे डिसाइड करेंगे? नीश डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट विद यू टू शेयर विद अदर्स, what you are possessing, the best thing which you want to share with others। ऐसा क्या है आपके पास जिससे आप दुनिया को देके खुश होने वाले हो। पैसे कमाना अलग बात है, जिसको दुनिया को देके खुश होने वाले हो। आप समझते हो मेरे पास सबसे अच्छी चीज ये है, आज तक का मेरा जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, वो मैं दुनिया को जो दे रहा हूं, वो मेरे पास क्या है। यस, नॉलेज बहुत बड़ा टर्म है कृष्णा झा जी, बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे आज हम, बहुत स्पेसिफिक, उसको नैरो डाउन करना है पाथ को। किस टाइप की नॉलेज मैं देना चाहता हूं, मेरे पास डोमेन क्या है मेरा, वो पर्टिकुलर डोमेन बाय इंटरेस्ट। ध्यान रखना, जो कर रहे हो जरूरी नहीं है वही करना है, कुछ जो मन में दबा रह गया वो भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है मैं अपना पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए जिस प्रोफेशन में हूं वही दुनिया को दूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप दूसरा भी रख सकते हो, पर कोई मन की बात हो, कोई पैशन हो आपके अंदर, कुछ स्पेशल हो आपका जिसे आप देना चाहते हो दुनिया पर, आपको लगता है वो किसी को काम आएगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आप प्लीज लिखें। और ये मुझे अलग से डालना है। ये एक्सरसाइज 2 है, ये आप आज रात को सोच सकते हैं इसको। हो सकता है 1 से ज्यादा चीजें हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो। मैंने जब इंट्रोडक्शन में देख रहा था तब मुझे कई लोग वहाँ ट्रेनर दिखाई दे रहे थे, तो मैं समझता हूँ कई लोग तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, और बाकी अगर कोई ऐसा बचा है जो अभी भी ये चाहता है कि मैं सोचूं इस पे, तो रात को बिस्तर पे पड़े पड़े सोचना, सुबह उठ के जल्दी सोचना, थोड़ा सोच के निकालना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं दुनिया को दूं, दुनिया के काम आए और मुझे पैसे मिले और सेटिस्फेक्शन मिले, खुशी मिले। ऐसी चीज वो आपकी नीश बनेगी। तो वो बेस्ट क्या है आपके पास, उसको तलाशना है। पहला क्वेश्चन ये आपको रिकॉर्ड में मिलता जाएगा, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। एंड द सेकंड इज हाउ मच यूजफुल इट इज फॉर अदर्स, ये दूसरों के कितने काम आने वाली है। अगर ये काम आएगी तो बिकेगी, तो लोग लेंगे, तो पैसे मिलेंगे, तो सेटिस्फेक्शन आएगा। आपके पास अच्छी चीज है, किसी ने खरीदी नहीं, काम ही नहीं आई, क्या मतलब है? आपने कोर्स भी बना लिया, स्किल भी ऐड कर ली, पर वो लोगों के काम ही नहीं आए।
धतूरा नहीं बेचना है, आपको यूजफुल चीज। अब हो सकता है कि मेरे पास 4 स्किल है, एक बिकेगी, 3 शायद ना बिके, तो आपको बस एक को आइडेंटिफाई करना है, विच वन इज यूजफुल। ऐसे स्फूर्ति ने लिख दिया है, yes, great, my niece is my passion for ancient Indian culture and traditions. I love exploring these and sharing the same with others. Wonderful, बहुत बढ़िया है। आपने इसको थोड़ा सा कोशिश किया है नैरो डाउन करने की, पर इसको थोड़ा और नैरो डाउन करना सर। आप पूरी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को, दुनिया को नहीं पढ़ा सकते। आप उसका एक पैकेट निकालो, छोटा डोमेन निकालो, जिस डोमेन पे आप बहुत ही स्पेसिफिकली उस डोमेन में काम करने वाले हो, उसे निकालो। यस, डॉक्टर पीयूष व्यास हमारे पास गाड़ी चलाते चलाते जुड़े हैं। सर गाड़ी सेफली चलाइएगा, कोर्स तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको लेसन मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ये चीज आपको दूसरा क्वेश्चन, जैसे अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी एग्जांपल लूं या, तो इसमें हाउ मच यूजफुल इट इज फॉर अदर्स। तो जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हमने उसकी पहले सर्वे की, फ्रॉम वेरियस कंपनीज की सर्वे को इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा किया, एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, इट मींस इट इज यूजफुल फॉर अदर्स। आपको कोई ग्राउंड चाहिए उसके। एंड थर्ड थिंग, इज दिस इन डिमांड और व्हाई अदर्स विल परचेज इट फ्रॉम यू। क्यों लोग खरीदेंगे आपसे। यस, कृष्णा झा लिखा, ज्योग्राफी, यूपीएससी एग्जाम, एनवायरनमेंट, साइंस, टैक्स, सीसैट, लीडरशिप ट्रेनिंग, इंटरव्यू गाइडेंस। बहुत बड़ा दायरा लिया सर आपने कृष्णा झा जी, बहुत बड़ा दायरा है, और हर एक फील्ड में इसमें कंपटीशन तगड़ा है। और नैरो डाउन कर लो इसको। टू स्टार्ट विद, मैं कहूंगा टू स्टार्ट विद, फिर तो बड़ा कर लेना आप डोमेन। टू स्टार्ट विद और थोड़ा सा। डॉक्टर ऋषि, वाह वंडरफुल, माय नीच इज टू स्टे फिट एंड गेट रिड ऑफ डिजीज, वाह वंडरफुल। तो तीसरा प्रश्न है कि इज दिस इन डिमांड, क्या ये समाज की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। दोस्तों वही बिकता है जो लोगों के काम आता हो, सोना हो या शराब, बिकेगा वही जो लोगों के काम आता है। तो आपकी चीज, आपकी नीज की कितनी डिमांड है और ये बिकेगी, लोग आपसे क्यों खरीदेंगे और आप ही से क्यों खरीदेंगे, जिनसे खरीद रहे हैं उनसे क्यों नहीं। आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, इसका आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे हमने निकाला कि वी आर एन इजी अप्रोच एंड इन रीजनेबल कॉस्ट। थोड़े से पैसे 500, 700, 1000 रुपए लेते हैं और लोगों को कॉल पे अवेलेबल होते हैं सारे टाइम, टू द ग्राउंड है। हम जब ये चीज देंगे लोगों को, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस कर लिया, उसी को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पास ऐसा क्या है जो है, उसकी डिमांड कितनी है और लोग आपसे क्यों खरीदेंगे, ऐसा स्पेशल क्या लेके जाने वाले हो आप, उसको आइडेंटिफाई कर लो प्लीज। जिसे बेचना है ठोक परख के तैयार कर लो आज, ताकि कल को आपको फिर पछताना नहीं पड़े, आज ही सोच लो। तो आप उसको क्या करेंगे, अपनी 3 बातें जरूर लिखना कि वो आपसे, आप ही का कोर्स क्यों चलेगा। उडेमी पे 4 लाख कोर्स पढ़े, 4 लाख में से आपको डॉक्टर ऋषि को कोई क्यों ढूंढेगा, यूट्यूब के चैनल पे कोई जाके क्यों डॉक्टर पीयूष को ढूंढेगा, कोई क्यों कुसुम मेहदत्ता जी से सीखेगा, क्यों उनके कोर्स को कोई ढूंढेगा, क्या स्पेशल होगा उसमें। वो स्पेशल इफेक्ट निकालो प्लीज, वो स्पेशल इफेक्ट निकालो। यस, चलिए दोस्तों, आपकी चैट्स मेरे को डायरेक्ट हो गई हैं, तो होस्ट के पास चैट आएंगी, तो जब मुझे ओपन करना होगा आई विल ओपन इट फॉर यू। चलिए, तो 3 चीजें आज ये एक्सरसाइज घर से करनी है, और घर से करके इसको सिर्फ इसलिए नहीं करनी, मैंने बताई है, प्लीज डीप डाइव इनसाइड, आप अपने अंदर उतर के देखना आज, और सच्चे आंसर निकालना। अगर सच्चे आंसर निकाले तो मैं बता दूं, ऑनलाइन टीचिंग का ये कोर्स 40 दिन का आपकी 40 साल आगे की जिंदगी में फायदा करने वाला है। अगर आपने सिर्फ इनका आंसर काम चलाने के लिए दे दिया तो कोई गारंटी नहीं है, हमें तो आपने पैसे दे ही दिए। आपको इसको बहुत तसल्ली से इस एक्सरसाइज को करना है। और इसका चौथा था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपने जो नीश बनाई, लोग उसे खरीदेंगे, ये कोर्स आपको कहाँ
हेल्प करेगा। यस, ठीक है सत्या। जस्ट ए मिनट। ये 4 क्वेश्चन मैं समझता हूं आपने लिख लिए होंगे। अब एक और एक्सरसाइज बचती है। डॉक्टर ऋषि लिखे जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी जो इंटरेक्शन है आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जरा बताएंगे प्लीज? फर्स्ट जरूर जरूर मैम, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। व्हाट इज द बेस्ट विद यू टू शेयर विद अदर्स? आपके पास दूसरों के साथ शेयर करने के लिए क्या सबसे चीज अच्छी है? ऐसी क्या चीज है जो सबसे अच्छी आपके पास जिसे दूसरों को दे सकते हो? और दूसरा क्वेश्चन था उसका नेक्स्ट कि वो जो चीज अच्छी है क्या वो डिमांड में है, क्या लोग पैसे देंगे उसके? एंड थर्ड एक्सरसाइज प्लीज, हम थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंच गए। सत्या ये मार्गदर्शन गुरु के नाम से एंट्री कर रहा है कोई आदमी, इसको देखना। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड देन प्लीज डू नॉट एंटर हिम। ओके ग्रेट। चलिए, तो तीसरी एक्सरसाइज है गोल सेटिंग। अब हमने 2 चीजें डिसाइड कर ली थी, बहुत सिंपल है, कई बार ये जिंदगी में एक्सरसाइज की होगी, आज ये बड़ी स्पेशल है और ये आपकी स्किल से कनेक्टेड है। पहला हमने क्या किया था? बोलें फटाफट जिसका माइक ओपन है। यस यस, अभी याद रहे। हमने सेल्फ एनालिसिस किया था पहला एक्सरसाइज में। हमने सेकंड यस, आप माइक ओपन करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम छोटा ग्रुप है आराम से। डिटरमिनेशन किया था। Is this homework, sir? हाँ यस, ये एक्सरसाइज होमवर्क है, हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन इसका आंसर नहीं आ सकता। यू वुड रिक्वायर सम टाइम, और शायद आपको आता हो पर सबको नहीं आ सकता। यू हैव टू डिसाइड, आपको सोचना होगा, रात को बैठ पे सोचना है इसके बारे में। सत्या ये भी नहीं लेना है। द पर्सन इज ट्राइंग टू एंटर विद डिफरेंट नेम्स। Okay, sir. यस, somebody want to create nuisance, तो प्लीज डू नॉट टेक हिम। और इसको रिपोर्ट कर दो वहीं से, आप राइट क्लिक करके ना वहीं से आप रिपोर्ट कर दो। यस, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ब्यूटीफुल सी एक्सरसाइज है रियली। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो मजा आ जाने वाला है। ये एक्सरसाइज है गोल सेटिंग। अब हमने क्या गोल सेट किया, या हमारा अपना क्या गोल है? Whatever we teach, what we have experienced in our life and profession, that we are going to share with you. हो सकता है उसमें कुछ गलती हो तो प्लीज करेक्ट अस। हमने क्या किया, जिस पाथ पे हम बढ़ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग सक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ, दैट what we have experienced that we are going to share with you in the form of example. मैं किताब में लिखी बात को एग्जाम्पल में आपको दूं तो ना मुझे सेटिस्फेक्शन होगा ना वो आपके काम आएगा। मेरी अपनी जिंदगी की जो सीख है, हमारी सीख है, वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। आप उसमें देखिएगा आपके कितने काम आ सकती है, कितना रिलेवेंस आप कर सकते हो, अपने साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा अपना गोल सेटिंग है, क्या चाहते हैं अगले 10 साल में, बाय 2031 हमें 10 लाख लोगों की सेवा करनी है। वी हैव टू सर्व 10 लाख पीपल। इस प्लेनेट पे, इस समाज पे, इस दुनिया में अगर हम आए हैं, बहुत सारा ज्ञान हमने इस धरती से लिया है। अब इस धरती को वापस देने के लिए हमारे पास क्या है, जो इकट्ठा हुआ 20 साल के करियर में, उस 20 साल के करियर में जो लर्निंग ली है, जो एक्सपर्टाइज हमें आया है, जो वैल्यू ऐड हुई है, वो हम इस प्लेनेट को वापस देना चाहते हैं। और वो किसको देंगे? 10 लाख लोगों का टारगेट है। हमने मिलके जो टारगेट बनाया वो 10 लाख लोगों का। 10 लाख का क्यों? क्योंकि हम 10 साल की जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है हमें, उसके बाद हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, टीम हमारी आगे बढ़ेगी। यस, मैं आपको बताने वाला हूं सर। यस प्लीज। किसी का माइक ओपन है और आपकी बैकग्राउंड में साउंड जा रही है फैमिली में, तो प्लीज आप, अगर यूज में नहीं है तो आप उसे बंद कर लेंगे।
अब यही 10 साल को हमने किया क्या देखिए, और वो ऑनलाइन टीचिंग से कनेक्टेड है, बिकॉज वी आर टीचिंग ऑनलाइन नाउ। दिस 10 years goal is spreaded practically in facts। प्रैक्टिकली आप देखेंगे हमने क्या किया, 2020 में क्या करेंगे, 5,000 लोगों को, सिर्फ 5,000 लोगों को सर्व करना है हमें। 2020 में सिर्फ 5,000 लोगों को सर्व करना है, और 5,000 में से एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा, एक आदमी से हमारा 500 रुपए। आप सब जो हमें दे रहे हो, कहीं से 500 रुपए आएगा, कहीं हम फ्री में सिखाएंगे, कहीं 1000 आएगा तो हमें उसके बदले एक को फ्री में सिखाएंगे। ऐसे करके जब हम सर्व करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू जितने लोगों का हम काउंट करते हैं एक साल में, हम दोनों मिलकर, हमारी जो टीम मिलकर, वो पूरी की पूरी 5,000 लोगों को टारगेट किया हमने। उनसे जो पैसा आएगा वो इतना आएगा। पैसा हमारा फैमिली में खर्च होगा, हमारे अपनी जरूरतों में खर्च होगा, हमारी टीम की जरूरतों में खर्च होगा, बट वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। वो निकल रहा है, देखो पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ समाज सेवा कर रहे हो, हम समाज सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा ही उद्देश्य है, बट जरूरतों के लिए किसी के पास डोनेशन के लिए नहीं जाना, हम साथ साथ ले रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू दे रहे हैं। तो आपको वैल्यू के बदले आपसे एक्स वैल्यू दे रहे हैं। तो सत्या, ये फिर पीपल ट्रेनर के नाम से आया, बहुत सातिर आदमी है इसको रिपोर्ट करो 2-3 बार वहीं से। चलिए, अगले साल में हमने क्या किया, इसको 50% से इंक्रीज किया, सेवा करना 50%, क्योंकि हमारी टीम बढ़ती जाएगी। सेवा करने में हर साल हमने 50% की सेवा इंक्रीज की है। हो सकता है हम 50% ज्यादा पैसे ना कमाएं, पर 50% ज्यादा लोगों को काम यानी सेवा दे सकते हैं अपनी, वो टारगेट किया। और हमने अगले 2031 तक 10 लाख लोगों का टारगेट कंप्लीट किया। उसके बाद आप देखोगे रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा स्कोर हमारा खड़ा है, और वो कितना आएगा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब साल दर साल आगे बढ़ रहे होंगे तो फिर इसको हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को सेट करना पड़ेगा, अपनी टीम को सेट करना पड़ेगा। तो आपको भी क्या करना है, अब जब आप ऑनलाइन टीचिंग को सीख रहे हो, कोई काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग को भी उसके साथ एसोसिएट करोगे, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या, उसमें कैसे हेल्प करने वाला है, इसको कहीं तो आप फिट करोगे, वो फिटमेंट आपका यहां से निकलेगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आपको बहुत सिंपल है, एक टेबुलर बना लेना है, पेपर पे बना लें, कंप्यूटर पे बना लें, आप अपने लैपटॉप पे बना लें, आप अपने मोबाइल पे बना लें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्रिएट कर लें। और बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। मैंने कई दिन लगाए थे इस एक्सरसाइज को तैयार करने में, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी के लिए थी, कई दिन नहीं कई साल लगे थे मुझे। जब दोस्तों आपके पास ये गोल होगा, अब आपके पास रीजन होगा कि मैं क्यों सीखूं और सीख के इसका करना क्या है मुझे। क्या मैं सिर्फ शौक में सीखने आया हूं ऑनलाइन टीचिंग, क्या मैं 40 दिन ऐसे ही खर्च करने वाला हूं। पैसा तो बहुत छोटी बात थी, आपने दिया और शायद वो पैसा भूल गए होंगे, हो सकता है आपकी कमाई का बहुत छोटा हिस्सा हो, और हमारे भी वो छोटे काम में आए, बट जो 40 दिन आप खर्च करने वाले हो रियली बहुत बेसकीमती है आपकी। तो ये 40 दिन में जो लर्निंग आने वाली है वो आपके अल्टीमेट गोल में कैसे ऐड होगी। सत्या, ये आदमी आपकी टीम के हर आदमी का नाम जानता है, तो वो कैसे आपको ऐड करने वाली, आपके उस गोल जो अल्टीमेट गोल है, प्लीज उसको ड्रॉ करके, चाहे जो कुछ सीखो उस गोल में कहां उसका इजाफा होने वाला है उसके साथ उसको अलाइन जरूर करो। तो अब आज 3 चीजें जब आपने डिसाइड कर ली, तो अगली क्लास से आपके पास एक रीजन होगा ऑनलाइन टीचिंग सीखने का। ऑनलाइन टीचिंग कैसे आपको हेल्प करने वाली है। सर जी प्लीज सर जी। ये 5,000 2020 में हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे पार्टिसिपेंट्स को। यस, मैंने ये जो हमारा ये एग्जाम्पल है सर, जो हमारा अपना एग्जाम्पल है, उसमें हमने ये साल के शुरू में डिसाइड किया था कि 2020 में 5,000 लोगों को सर्व करना है। तो 5,000 लोगों को सर्व करने के लिए हमारे पास टारगेट होता है, इसका मैंने मंथली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी बनाया हुआ है अपने लिए, जो मैंने आज शेयर नहीं किया यहाँ। तो हमें तो पूरी टीम को महीने में 500 लोगों को ऑन एवरेज 400 समथिंग कुछ आता है, इतने लोगों को सर्व करना है। तो हम एक महीने में करीब 10 कोर्स चलाते हैं। एक कोर्स में हमारे 20 से 25 से 30 लोग होते हैं।
300 लोग पेड हो जाते हैं हमारे। उसके अलावा हम हर हफ्ते 4 से 5 वेबिनार फ्री करते हैं, जिसमें हम लोगों को फ्री सिखाते हैं। सुबह 2 घंटे योगा की क्लास हमारी चलती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन योगा है। वहां हम लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, उनके दर्द, शरीर के रोग खराब ठीक कर रहे होते हैं। तो वो एक काउंट चलता है हमारा। वो काउंट मिलाने के बाद फिर करियर काउंसलिंग की क्लासेस चल रही होती है मेरी। उन सबको मिलाने के बाद ये नंबर 500 पे आ जाता है। अभी हम 500 पा रहे हैं। हम जो अभी न्यू कमर है, तो हमको कितना रखना चाहिए ये टारगेट? एग्जैक्टली। अब आपको ये तब पता चलेगा आप अपनी जिंदगी में करने क्या वाले हो। पहले उसे डिसाइड करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। यहां हमने क्या किया, हमारी कैपेसिटी कितनी है, अभी हम कितना कर सकते हैं दोनों मिलकर, उतना रखा हमने। फिर हम अगले 10 साल में लोग जुड़ते जाएंगे, उनके साथ हम किस कैपेसिटी से आगे जाएंगे, ये डिसाइड किया। तो आप अभी करने के लिए पहले आप एंड टारगेट को डिसाइड करो और आज की कैपेसिटी को डिसाइड करो। फिर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्रेड ओवर करना। मान लिया आज आपने 20 रखा, एक महीने में 20 आदमियों को पढ़ा सकते हो ऑनलाइन टीचिंग में। क्योंकि पहली बार जब कोर्स बनाओगे तो आपको चमत्कार नहीं होने वाला है कि दुनिया आएगी और आपका कोर्स खरीद लेगी, नहीं होने वाला। आपको बेचना है। सत्या ये भी आदमी नहीं है, रोशन ठाकुर आया अभी। आपको बेचना है, तो आपको बेचना भी सीखना है, प्रमोशन भी सीखनी है, मार्केटिंग भी सीखनी है। जब ये सारे काम आपको सीखने हैं तो आपको टाइम चाहिए उसे प्रमोट करने के लिए। बहुत धीरे जाएगी शुरू की गाड़ी, पैसेंजर चलेगी आपकी। तो पैसेंजर अभी हो सकता है महीने में 20 ग्राहक हाथ आए आपके, अगले महीने उसको स्पीड अप करना 30 आ जाए। तो इस साल आप 20, अभी कितना बचा 2020 में, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर को लूं मार्च तक, तो आपके पास 6 महीने बचे हैं। आप 160 लेना है तो आप 160 ही लें, आपको लेना है 200 तो आप 200 ही लें। Okay, sir. Thank Sir, you. could you explain in English, sir, this chart, how to prepare and what shall I do for initial people? Yes, for sure. So this chart is for your goal decision. I means how you have to decide your goal. You are going to learn a new skill, which is known as, नई स्किल है जो आप ऑनलाइन टीचिंग सीख रहे हो। This skill, how is going to benefit your ultimate goal of your profession? What you are going to do for others and yourself as well. तो जो आप करना चाहते हो उसमें ये कैसे बेनिफिट करेगी? First, you have to decide the end target, end goal of your profession, of your life. And now, at what point you are. If you are teaching in offline mode and earning 45,000 rupees per month, and you want to start more earning and you want to earn more money for your family, then you have to decide how much money you want to earn. What would be the requirement of your family, your kids, and your old age? That you have to estimate. If it is getting estimated, then you have to spread over for the years you have to work for. Then you would come to know that I have to work 8 hours a day or 10 hours a day or 16 hours a day or 2 hours a day. And rest of the time I would remain relaxed. I have to live my life. So that you would come to know when you have outlined the whole this goal thing and pathway for yourself. So what I did, so we have got target that we can maximum, as per our capacity, we can train maximum 10 lakh people in next 11 years. Why? Because in last year we could do around 3,500 people. हमने 3500 लोगों को पिछले महीने में ट्रेन किया. Then this year, because we were a small team, and this year we took 5 more people with us who would work for this company or this venture, then for sure the performance will get increased. Now this would be increased by 50%. The same way we would keep adding people and our growth will be slowly increased at the rate of
almost and on average 50%. And this way, if we go ahead, then in next 11 years, we would be reaching at our end target, which is 10 lakhs people, serving 10 lakhs people. And beside this, we have outlined how much revenue we would be earning from these people. हम कितना इनसे ले रहे होंगे वो भी साथ आ रहा है, और कितना खर्चा हो रहा होगा, कितनी सेविंग्स आएंगी, कितना फैमिली का मैंने उतने लेवल तक किया हुआ है। तो आपको तो सिर्फ इतना करना है कि मेरा एंड टारगेट क्या है, ताकि ये ऑनलाइन टीचिंग की जो मैं लर्निंग करने वाला हूं, कितना कस्टमर मुझे चाहिए होगा एक महीने में, कितना कोर्स मेरा बिकना चाहिए, तो मुझे उस लेवल का कोर्स बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि लाखों कोर्स ऑलरेडी बने पड़े, लाखों ऑनलाइन टीचर ऑलरेडी हैं, a lot of people are there, then why others will purchase you? You have to market yourself, you have to promote yourself, then how much work you have to do, or how much time you have to market yourself, then only you would be able to do this. I think now you got answer of your question. Yeah, okay, sir. We have to work on it. Okay. It's okay. चलिए, और कोई क्वेश्चंस आपके हों तो I would be happy to take them. Sir, also in that Santosh here, Lokman sir. So sir, also in that particular slide. Yes, please. You can please go back to that slide. Just a minute. I'm going it again. Yes, which one this is? This? That slide. Table, that table. So, see, from the first year, we have considered 5,000 number of beneficiaries, and second year we have taken 7,500, and third year we have taken 10,000. So, on what basis we have selected the numbers for the second and third year, Lokman sir? Exactly, that's a good. And Satya, took this person, you should not take it inside. Satya? Satya, are you there? Yes sir. क्यों लिया इस आदमी को अंदर आपने? सर धोखे से बटन दब गया मेरा, हटा दिया मैंने सर। नहीं, हटा तो दिया, पर वो आदमी तो अल्टीमेटली इतना करने के बाद भी वो सक्सेस हो गया और हम फेल हो गए। नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए, यू शुड नॉट टेक इट। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें नाउ यू विल सी कि हमने 5,000 कैसे लिया। तो पहले हमने जो लास्ट 2 years में जो किया, when we started together, before this I was in job. I would share my story. I was in job. I was head HR for a multinational company. Then I quit it from there and I started doing freelance training. And at that time when I started, so I could do for very few people. And after that, yes, Satya, you want to say something? सर ये मैसेज प्राइवेट था आपको? Okay. Just a minute. आप पूरा पढ़ो, उसको अंदाजा लग जाएगा आपको। तो वेटिंग रूम में था, तब का इंटरेक्शन था मेरा। Okay. It was interaction waiting. Yes, sir. Oh, he could not enter inside now? नहीं सर। It's okay. Thank you then. Thank you. You got success today. दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं एंड दे हैव चैलेंज विद अस। रियली उनको बहुत ही चैलेंज मिला है और उनके लाखों रुपए के कोर्सेज थे। हम उनको ये छोटे छोटे कोर्सेज से उनको इतना कॉम्प्लेक्स फील हुआ है कि वो हमारे जूम अकाउंट को हैक करते हैं। रियली यू वुड नॉट बिलीव, जूम तक को हैक करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी लगा दी है। एंड अप फ्रंट आने के बाद हमें जहाँ टेक्नोलॉजी से वो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, एंड वी डोंट केयर फॉर देम।
तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, वो ऐसे लोग आते रहेंगे एंड वी कैन कंटिन्यू। तो मैंने क्या किया, जब व्हेन आई क्विटेड फ्रॉम देयर, सो आई कुड डू सर्व वेरी फ्यू पीपल एंड देन मी एंड सत्या बोथ मेट समवेयर। हम कहीं मिले और मिलने के बाद हमने टारगेट किया कि हम साथ मिलकर 1+1 11 होते हैं और आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग बिजनेस में। तो मेरा कोर है डिलीवरी, सत्या का कोर है मार्केटिंग, दोनों मिलके हमने काम किया। तो हम एक साल में 3500 लोगों को कर पाए। हमने पूरा फुल कैपेसिटी पे करीब 16 घंटे काम किया। Then we could do 3500. Then we decided to take more people and we started taking people. Then we decided very cool way, means if we are living our life very good way, हम अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाते, अच्छी तरह जिंदगी जीते जीते हम कितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो we decided कि we can go up to 5000, means we can increase this by 50%। जब हम 50% कर सकते हैं इस साल, तो क्यों नहीं हम इसको अगली साल भी करें। जब 50% से हम आगे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 11 साल लगेंगे और मेरी एज आज 43 है। मैं इसको 11 साल के बाद 54 पर मैं अपने पहले टारगेट को बिल्कुल अचीव करने के बाद, सत्या की एज मेरे से कम है, सत्या को उसके बाद उसका गोल बड़ा हो जाना है, मेरा गोल मैं उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करूंगा और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी, सत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी, मुझे वहां से थोड़ा स्पेयर हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ और अच्छी तरीके से जीनी है, जितना जी रहा हूं उससे ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो एज बढ़ रही है उतनी एनर्जी मेरे पास होगी नहीं होगी, मैंने वो एस्टिमेट किया है। तो मैंने अपनी लाइफ को और प्रोफेशन को दोनों को इंटीग्रेट करके अलाइन किया। अलाइन करने के बाद मैंने परफॉर्मेंस को आउटलाइन कर लिया। अब आउटलाइन करने के बाद मेरी जो स्किल्स हैं उन सबको झोंका मैंने उसमें। मैं करियर काउंसलिंग करता हूं, योगा करता हूं और मैं दूसरों की ये डिजिटल मार्केटिंग की टीचिंग है। तो ये सारे काम मुझे क्या उस लेवल पे पहुंचा पाएंगे, तब मैंने ये आउटलाइन किया। अब आप ऑफलाइन में कुछ और भी कर रहे होते हैं और ऑनलाइन अब उसी काम को ऑनलाइन करोगे, या ऑनलाइन टीचिंग में कोई और स्किल पढ़ाने वाले हो। मान लिया आपका कोई और स्किल है, कोई और पैशन है, आप क्रिकेट अच्छी खेलते हो, आप लोगों को क्रिकेट की कोचिंग देना चाहते हो, पर प्रोफेशन में आप जॉब कुछ और करते हो, तो आपको ये टारगेट होना चाहिए कि क्रिकेट मेरा कितना काम करेगी, जॉब मेरा कितना काम करेगा, कितने साल जॉब करूंगा, कितने साल क्रिकेट में मुझे आगे जाना है, ये दोनों मुझे इंटीग्रेट होके क्या देने वाले हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैंने ये ऐसे आउटलाइन किया सर। आई थिंक मैं आपकी जवाब दे पाया। अजय पायल, थैंक यू लोकन सर। थैंक यू जी, ग्रेट ग्रेट। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो आज इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क इट सर। सर अब ये क्लासेस अल्टरनेट दिन होंगे सर? अल्टरनेट डेज होगी सर, संडे को क्लास नहीं होगी। अल्टरनेट डेज होगी ना? यस, क्लास वुड हैपन ऑन अल्टरनेट डेज, 3 क्लासेस इन अ वीक बट नो क्लास ऑन संडे। संडे को कोई क्लास नहीं होगी। ओके और सर, और ये होमवर्क अभी कभी तक करना है? होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क आपकी पहली एक्सरसाइज तो आपने कर दी, बट उसको भी आप आउटलाइन कर लेना पेपर पे। एंड सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, एक्सरसाइज 3 के टाइम आया तो मैंने कुछ मिस किया जो होमवर्क में मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको होमवर्क जरूर करना है, आपको लेसन देखना है। मैं वीडियो लेसन पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियो लेसन पोस्ट करना है। रिकैप करता हूं 2 मिनट में। हमारे 3 टॉपिक थे आज, सेल्फ एनालिसिस, नीड्स डिटर्मिनेशन और गोल सेटिंग। हर एक लेसन से पहले ये हमारी ओके सर। अब इसमें आपको क्या करना है, पहली एक्सरसाइज है, ये 10 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, बहुत जेन्युइनली, ईमानदारी से, कोई चीटिंग अपने आप के साथ नहीं करनी, क्योंकि आप अपने को एनालिसिस कर रहे हो। मुझे आप कम नंबर दोगे, ज्यादा नंबर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने जेन्युइनली आप अपने को एक्सेस कर लोगे, तो हम और आप दोनों मिलके अगले 40 दिन में आपकी उन चीजों पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे जहां आप लैकिंग हैं और जो ऑनलाइन टीचिंग में चाहिए। तो वो 10 चीजें इसमें रेट करना है आपको 1 से 5 के स्केल पर। ये 10 क्वेश्चन है। ये पहली एक्सरसाइज थी सर। दूसरी एक्सरसाइज, आपको 4 क्वेश्चन है आपके पास ऐसा क्या बेस्ट है जो आप दूसरों को दे सकते हो दुनिया में। वो जो बेस्ट है वो कितनी चीजें हैं, उनमें से ऐसी कौन सी अच्छी है जो दूसरों के काम आ सकती है, और ये डिमांड कितनी है इसकी
और लोग इसे क्यों खरीदेंगे, इसका रीजन देना है आपको। क्योंकि आप कोर्स बना भी लोगे और नहीं बिका तो फिर आप गाली दोगे हमें और आपका टाइम जाएगा, हम नहीं चाहते। और आप इस कोर्स से क्या उम्मीद करते हो, ये 4 सवाल आपके सेकंड एक्सरसाइज में थे, तीसरी में आप आ गए थे। आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब आपके जो क्वेश्चंस हो तो आई वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चंस, आई वुड बी हैप्पी टू हैव योर क्वेश्चंस। ये होमवर्क कहाँ पे पोस्ट करना है? ये होमवर्क कहाँ पे सारे पोस्ट तीनों करना है? एक्सरसाइज के आंसर देने हैं क्या? यस, ये जो होमवर्क है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में पोस्ट करना है। इन केस यू फील कंफर्टेबल, तीनों एक्सरसाइज, yes, तीनों एक्सरसाइज, in case you are comfortable posting in this group, you are okay, otherwise you have to post it privately at my number जो 9499166350 मैं लिख देता हूं यहाँ आपको चैट में। ओके सर। Sir, three days. What are the 3 days, sir? Plus. Yes, so today's I think Thursday, आज थर्सडे है ना? एक मिनट, आज Yes. अगर आज थर्सडे है देन दिस वुड बी ट्यूसडे, थर्सडे, Tuesday, Thursday, and Saturday, right? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आपकी तरफ से कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इफ नॉट देन जो बाद में ज्वाइन किया था उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। और आज Yeah, told me Tuesday. Sir, this course should be. Sir, to attend this class, shall we need a computer, any other I mean, to equipments? Just is it enough? Enough for mobile is enough. Computer would be required for this course. Computer would be required. In case you can arrange, so you should, because online teaching में आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। No. Okay. Achha, but I'm accessing only through my phone. I had spoken to Shikha ma'am. She told me it's okay. You can do it with the phone also. You can do it with phone, It is required. but adding computer can add benefit to you. आज हम जो सिखा रहे हैं, अगर कंप्यूटर आप मोबाइल पे कर रहे हो आप कर पाओगे, बट उतने बेहतर तरीके से, क्योंकि आपको ऑनलाइन टीचिंग में जाना है तो आपको 150 लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। जब आप लोगों को पढ़ाओगे तो मोबाइल से पढ़ाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मोबाइल पे वो सारे टूल्स नहीं होते, वो फीचर्स नहीं होते जो दूसरों को पढ़ाओगे। आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो वीडियो एडिटिंग करेंगे, और वो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल हैंग होने लग जाता है। आप कर सकते हो मोबाइल पे, बट अगर आप कहीं से कंप्यूटर पुराना भी अरेंज कर लोगे ठीक सा तो भी चलेगा, या नया लो तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपको टैक्स से भी होना है, हम यहाँ आपको कुछ टिप्स ऐसे देंगे जिससे आप Score. So shall we आपकी log आवाज क्रैक हो रही है। यस प्लीज, अभी आवाज आ रही? हेलो, देखिए बेटर रहेगा। मेरी आवाज सर आपको आ रही है? Yeah. Laptop is recommended if you purchase a laptop. It will add a lot of value. Why? Because when you edit your videos, well, if you edit on your mobile, it is very difficult to edit. Second, there are not so many options are available in the mobile application when you edit on the mobile. So I recommend you must have laptop. I understood. But when I started If you the course, I don't had made have it very clear. that, I will not be using laptop for some time. pardon, so what was your question? then You you would, can move on with I your can't hear you. Actually, your voice is cracking. okay, might be, or it might be a issue of internet. Yes, so you made clear, so we can compulsion. If you do not want to use laptop, you can in case you are not able to take the do the editing also on the Your voice is cracking. Voice I don't know breaking whether coming. I have a network issue. I can't hear you properly somehow. yes, it's a network issue from our end also. Both the sides, sir. Satya's getting it. No, my question Sir, is, actually I spoke to Shikha ma'am and she told me it's okay.
because I am No, expecting a good computer in the month of December. सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है. मेरी voice आ रही है आपको? यस आ रही सर. Yes, PC is okay. PC is Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. We that is can the hear reason you. why I'll be Okay. upon right now. हाँ, अभी मैं रफीक जी आपकी मेरा कंप्यूटर दिसंबर में आने वाला है, लैपटॉप अच्छा लैपटॉप आने वाला है दिसंबर में. तो आई एम गोइंग टू डू दिस कोर्स फ्रॉम द फोन. सर हम बात कर सकते हैं इसको अलग से, कैसे उसका ऑल्टरनेट वी कैन कंटिन्यू कर सर. Very voice break is coming. The sir. voice is breaking. Yes, We can't hear you. What you're... let's disconnect the class now. Okay. I'll speak to you then. On... सर मेरा वॉइस आ रहा है सर. Yes, सत्य हम अभी आया आपका आवाज. जी. ओके. एक चीज ध्यान रखिए, आप बिना लैपटॉप के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट थोड़ा फोन का कॉन्फ़िगरेशन आपका अच्छा हो ताकि फोन के एप्लीकेशन से आप एडिटिंग कर पाएं. ठीक है. ओके तो फाइन. हाँ, तो फोन आप अच्छी क्वालिटी का लेना, उसका रैम अच्छा हो, इंटरनल 4 GB एंड 4 GB रैम. I have 128 इट इज GB. इनफ सर. Sir, in my laptop, my camera is very dim, sir. Then what shall I do and how much capacity and what shall I apply? Videos by your webcam. So I think so 1800. If you want to see my screen, okay, quality आपको अच्छी लगी सर? 1800 is the cost of this webcam. You can purchase online, sir. What is this company, sir? What is this? Zebronics, sir. Zebronics. Capacity, sir. Capacity. Capacity. It is 5 megapixel HD camera, sir. 5 mega. Full sir. HD. Yes, sir. 5 megapixel. 5 megapixel. This would be some resolutions or something like that. Yes, sir. 5 megapixel, sir. 5 megapixel, sir. 5 megapixel. Yes, sir. Because whenever you purchase this is my recording when I using laptop inbuilt camera of laptop, and this is the mic, sir. Look at this size of webcam. So even if this webcam is a 5 megapixel, it give very good photo. Why? Because the camera, the resolution, this aperture is of large size. इन फोन कैमरा अपर्चर इज वेरी स्मॉल साइज. आपका अपर्चर होता है एरिया जहां आप रिकॉर्ड करते हो फोटोज को. ठीक है. तो ये अपर्चर इसका बड़ा होता है. 5 मेगापिक्सल में भी अच्छी फोटो आती है. नो नीड टू परचेज वेरी कॉस्टली वेब कैमरास. 1800 आई थिंक सो इट इज ए वेरी नॉर्मल अमाउंट. यू कैन स्टार्ट विद दिस, सर. सर इसको लैपटॉप पे माउंट करते हैं क्या? यस सर, लैपटॉप पे मैं माउंट किया. देखो इसको लैपटॉप पे माउंट कर देता हूँ मैं, और माउंट करने के बाद देखो अभी सिंक करता हूँ. लुक एट दिस. अभी मेरी फोटो मेरे लैपटॉप के कैमरा से आ रही है. अब मेरी फोटो आएगी इससे. लीजिए यहाँ से आ गई. आप डिफरेंस देख सकते हैं सर. तो ये डिफरेंस है, और भी आप आराम से कर सकते हैं. 1800 रुपीज खर्च करके मुझे लगता है इससे अच्छा कैमरा आपको मिलेगा. बट इन ऑडियो क्वालिटी या इन ऑडियो सिस्टम यू हैव टू इन्वेस्ट. सर ऑडियो. यस सर. आप देख पा रहे हैं तो ये मेरे पास 2 सिस्टम्स हैं. इससे मैं आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इससे मैं आपको सुन पा रहा हूँ. दिस इज माय वॉइस रिसीविंग, जहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एंड यहाँ से मैं हियरिंग कर पा रहा हूँ. एंड इफ यू लुक एट दिस, अभी देखो मेरा साउंड इस ज़ेब्रा से आ रहा है. अभी इनपुट साउंड और आउटगोइंग साउंड दोनों है. नो वॉइस सर. ठीक है. अभी वॉइस आ रही है आपके पास सर? ओके. अभी वॉइस आप आ रही होगी. वॉइस की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा. इतनी शायद अच्छी नहीं होगी, थोड़ी दिक्कतें होंगी. ठीक है. बट जैसे ही मैं इसको स्विच करूंगा अपने ब्लू के माइक पे, तो आप देख पाएंगे तो ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी. मैं इसको पास लाऊंगा. देखिए इसको मैं पास लाया तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी आएगी आपके पास. बट जैसे मैं स्विच करूंगा येती पे, इसका नाम येती है, आप डिफरेंस देख सकते हो. एक सेकंड लेगा. यस, नाउ यू कैन हियर. आप now sir, now you can see the difference in the audio quality. Now at present I am using this Blue Yeti. You can just feel the difference in the audio quality. This is the sound of Blue Yeti, and if I move on to this particular microphone, now you can hear the audio quality of this microphone.
So what is this, sir? What is this equipment? sir, this one is USB In front of you. USB microphone with mic, and this is Sir, Blue what is this, Yeti. sir? Blue. Sir, Blue is a brand, Yeti is the sub product. So if you want to purchase any microphone, okay, So you should go for Sennheiser. Sennheiser, this Lokman are using. This is of cost around 15 to 2800. You can purchase online. I would not suggest to buy this one initially, but because it's cost around 12,000 rupees. So I will not recommend you because the cost is very high. So if you make some videos after making few videos, then you can move on to purchase this costlier one. Audio, sir. So initially, Sir, audio. This one. sir, this is a audio recording device. This is specially audio recording device. Yeah. So its cost approx 12,000 rupees. I will not recommend you to buy this one. You can buy whatever ones are using a Sennheiser. I think a Sennheiser sir. This is कौन सा यूज करते सर आप? Satya, this is Sennheiser, but this all is to be covered in a special class. We are going to cover it in next classes. So we would cover all the mic qualities and categories whenever we are going to shoot our videos. So that would be covered. I think then you can ask your questions, and let's finish the class today. In case everyone has get the message. I have just one submission. Before purchasing any equipment, please make at least 5 to 10 videos. After making 5 to 10 videos, then you should purchase as costly equipment. Why? Because most of the person purchase the equipment, but they do not make the videos. Okay. Thank you. Thanks a lot for this lovely audience. Thanks. Good night. Wow. Great. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you.